Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, your maths teacher, and I'm here with a new chapter. And our chapter which is going to start is integers. Okay? So previously we have completed 3 chapters. Till now we have completed 3 chapters and now it's our 4th chapter. We are going to start this. So the name of our chapter is integers. So first of all we should know what is that integer. Okay? So let's start. So before starting the chapter we should know the number. So first of all the number, you know that counting, what we are doing, counting 1 2 3 4, these are numbers. Okay, so first of all we will go through the types of number. First one is natural numbers. All counting numbers which you can count, that means from 1 2 3 4 to infinite, that we can count are natural numbers. Okay, then after whole number, all the natural numbers, that means all the counting numbers along with 0. Okay, along with 0 they all are whole numbers. Then after third one is integers. The chapter is integer. So all the natural numbers which has negative or positive sign, that means all the numbers that have either positive sign or negative sign, they are called integers. A very complicated question is that 0 is integer or not. If anyone asks you that 0 is integer or not, so what you will say, that 0 is an integer, because 0 is also included in that, but 0 is neither positive nor negative. So the example of integers are -6, -5, 4. You can see here that all the negative and all the positive sign numbers are integers. 0 is neither positive nor negative. Okay, so इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास कोई साइन होता है, मतलब या तो उनके पास नेगेटिव साइन होगा या तो उनके पास पॉजिटिव साइन होगा. अगर किसी भी नंबर के पास नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है तो हम उनको ईजिली इंटीजर कह सकते हैं. सो कमिंग टू योर टेक्स्ट बुक, you can see here that introduction of integers. So integers are those number that possess several sign, that means the negative sign or positive sign. ऐसे नंबर जिनके साथ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कोई साइन हो उसको हम इंटीजर कहते हैं. ओके, आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे सच दैट 1 + -1 = 0. मतलब 1 है, 1 का अपोजिट होता है -1. अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमें 0 मिलता है. मतलब अगर पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर और उसका साइमल्टेनियसली नेगेटिव नंबर अगर हम ले लें और उनका सबमिशन करें तो हमें 0 मिलता है. ऑल दैट नंबर्स आर इंटीजर्स. ओके, सो मूविंग अहेड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, positive integer and negative integer. You know that 1 2 3 4 are, these are positive integer and negative integers are -1 -2 -3, like this. Okay, so 0 is neither positive nor negative. Okay, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है. Now we will see the representation of integers on number line. You can see here there is a line, this straight line, in which the middle point is 0, and toward the right end you can see this is the right end. The right end have all the positive numbers. You can see 1 2 3 4 5, and in the left side all the negative numbers are kept. Okay, this is a number line in which you can see the integers are present
ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें राइट साइड, इस दाहिने साइड हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं और वहीं पर हम बाएं साइड सारे नेगेटिव नंबर्स को रखते हैं। ओके, अगर आपसे कोई कहता है कि -3 को आप नंबर लाइन पे शो करिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली -3 पे जाएंगे और बोलेंगे कि ये जो पोजीशन है ये नंबर लाइन पे -3 की पोजीशन होगी। अगर कोई आपसे बोल रहा है 5 कहाँ होगा, 5 आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे और बोल देंगे कि यहाँ पे 5 होगा। सो इन दिस वे वी यूज टू रिप्रेजेंट द इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। ओके, सो based on these two things, that is the integer, positive and negative integers, and representation of integer, we will move to our exercise and solve several questions based on that. Before that, let's remind one thing, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल दीज पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं ये हमेशा नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होंगे, हमेशा। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले +3 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे कि +3 बड़ा है। जो साइन, जो नंबर जिसके पास पॉजिटिव साइन होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। मतलब अगर आपसे कोई कह रहा है -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, अगर आपसे ये कोई कह रहा है तो यहाँ ये 0 जो है ये तो बैलेंसिंग ऑर्गन है, लेकिन इधर जैसे आप जाएंगे सब छोटे होते जाएंगे, मतलब इनकी वैल्यू लेसर है इन कंपैरिजन टू दीज नंबर्स। ओके, सो 0 के आगे अगर आप बढ़ते जा रहे हैं ये सारे नंबर हमेशा इन सब से बड़े होंगे। ओके, सो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, all the positive integers are always greater than negative integers. Okay, 0 is also greater than all the negative integers. Clear? So these things you should kept in mind. Now one more thing, if anyone asks you that 2 is greater और 5 is greater, आपको पता है 2 भी है पॉजिटिव और 5 भी है पॉजिटिव, इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि 5 बड़ा है। ओके, लेकिन अगर आपसे कोई बोले -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है, अगर ये कोई बोले तो आप बोलेंगे कि -2 बड़ा है, क्योंकि आप राइट साइड जो नंबर पूछा जा रहा है, 2 पूछा जा रहा है, आपसे बोला गया कि -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है। आपको पता है किसी नंबर के राइट साइड जैसे हम जाएंगे तो हमें बड़े नंबर्स मिलेंगे, मतलब वो उस वैल्यू से जैसे हम राइट साइड इधर मुड़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे हमें नंबर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, हमें बढ़ती हुई वैल्यू मिलती चली जाएगी। -5 से -4 बड़ा होगा, -4 से -3 बड़ा होगा, -3 से -2 बड़ा होगा, -2 से -1 बड़ा होगा। मतलब जैसे ही आपसे किसी ने पूछा कि बताओ -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है, आप 2 को उठाएंगे और इससे 2 से बड़े सारे नंबर इस साइड हैं, आप देखेंगे कहीं भी -5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब -2 बड़ा होगा, क्योंकि -2 के लेफ़्ट साइड में ही हमें -5 दिख रहा है। -2 के राइट साइड हमें सारे उससे बड़े नंबर्स मिलेंगे, वहीं पर अगर हम उसके लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमें सारे छोटे छोटे उससे छोटे नंबर्स मिलते जाएंगे। अगर हम -5 से कंपेयर करें तो आप जैसे इससे इधर बढ़ते जाएंगे इस साइड, वैसे ही आपको सारे नंबर्स बड़े मिलते जाएंगे, और वैसे अगर आप इधर जाएंगे तो उससे सारे नंबर छोटे मिलते जाएंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है इंटीजर्स को सिग्निफाई करने का कि कौन सा इंटीजर बड़ा है और कौन सा इंटीजर छोटा है। अगर आपसे कंपैरिजन की बात की जा रही है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, उस नंबर के राइट साइड आप बढ़ते जाएंगे तो उस नंबर से सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी, और अगर उसके लेफ़्ट साइड जाएंगे तो उस नंबर से सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी। ओके, अगर -5 और -8 कोई बोले तो -5 बड़ा होगा। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू आवर exercise 4.1. You can see here the first question is
fill in the blanks by appropriate symbols of greater than or less than. Okay, so you have to put the sign of greater than or less than by recognizing the numbers. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको देखना है कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा इंटीजर बड़ा होगा और कौन सा इंटीजर छोटा होगा. 0 और 5. 0 सेंटर में होता है, पॉजिटिव साइन राइट साइड में होता है 0 के. आप आगे बढ़ते जाएंगे, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है. ओके, यहाँ -10 है और 0 है. 0 से आगे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. 0 के -10 0 के कौन से साइड में आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा. इसका मतलब ये छोटा होगा, 0 बड़ा होगा. ओके, यहाँ पे ये 5 बड़ा होगा. ऐसे ही 15 और 10 आप देख रहे हैं, 15 के पास न कोई साइन नहीं है, 10 के पास भी कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों पॉजिटिव है. इसका मतलब 15 ही बड़ा होगा. यहाँ पे हम देखेंगे -163 और -263. हमने अभी देखा कि अगर कोई नंबर है और उसके पास नेगेटिव साइन है, मतलब यहाँ कंपैरिजन इन दो नंबर्स की हो रही है और दोनों नंबर्स के पास नेगेटिव साइन है, तो छोटा वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा. ओके, छोटा वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा अगर दोनों नंबर्स में सेम साइन दिया गया है. मतलब सेम साइन मतलब नेगेटिव साइन ही होना चाहिए. अगर सेम साइन यहाँ भी तो है, 15 है पॉजिटिव है, 10 भी है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये थोड़े कि 10 हो जाएगा. इसका मतलब अगर नेगेटिव है, अगर दोनों नंबर्स की साइन नेगेटिव दी गई है इन दिस क्वेश्चन, यू कैन सी दोनों नंबर्स की साइन नेगेटिव है, तो जो छोटा वाला नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है. यहाँ देखेंगे -10 एंड 10, वैल्यू तो दोनों सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है. यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ऑल द पॉजिटिव साइन नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव साइन नंबर्स. ओके, so this will be greater. Clear? So moving to the next question. Now you can see the question number 6. Write all the integers between -5 and 5, -5 and 7, -3 and 6, -2 and 12. -5 से 5 के बीच का इंटीजर पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? अगर आपसे कहा जा रहा है इस -5 से लेकर के इस +5 तक के सारे इंटीजर्स का नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? -5, -4, -3, -2, -1. 0 को नहीं भूलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5. मतलब आप यहाँ से लेकर के ये पूरी वैल्यूज़ लिख देंगे. ओके, लाइक -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये हो जाएगा उसका आंसर. ओके, so you have to write all the integers between these. So your assignment work is solve question number 1 and question number 6. We will discuss 2, 3, 4 and 5 in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you, class.